and all my dear Innovation Cell members and the students who have joined for this very interactive session. I welcome on behalf of BIT Durg Institute Innovation Cell, and I would have a warm welcome to Mr. Rakesh Soni sir for delivering a session on intellectual property rights and intellectual property management for startups. He is a very good lawyer. Basic education is PGD, HRM, MPA, and LLB with a master's in botany. He is presently practicing in Indore. Uh, Rest, he will speak about himself first. Okay, then he will start with the session, the intellectual property rights in academic researchers, types of innovation patentable, and how to test your patentability of your innovation, procedure of patent writing, patent filing, and process of granting patent. And I hope you will enjoy the sessions. It's my request now, Rakesh sir, to please continue with the session. Sir, please. Yes, thank you very much, Sanjay sir, and thank you very much to BIT to given me the opportunity to interact with the like members like you. And first of all, I am Rakesh Soni on behalf of Intellect Goodwill. We are the registered attorney and advocate for IPR, intellectual property rights, patent, trademark, copyright, everything. That's we will discuss in later. And we have our office in Indore and Bombay, Hyderabad, and Jaipur. So first of all, we will start our session with brief introduction of the IPR. What exactly IPR is? Intellectual properties. Like you are very much aware because you are in the technical institute. You are very much aware about the properties. What kind of properties are available? So I will share my presentation first of all. Then we will go simultaneously with the question answer. If you have any question answer, you can just put your questions in our message. Drop the message here. We will reply accordingly. If you required more queries about the IPR, then you can mail me. We will give the mail number, mail ID as well as our number, and you can discuss directly with us about any kind of query or awareness. So for today's session, first of all, we are going about the awareness of IPR from basic scrap knowledge of IPR, how many kind of IPRs are available in India and how you can protect your IPR, intellectual property in India. So I will share my presentation, then we will go simultaneously. Ashok sir, my presentation can I share right now? Hello. Hello. Yes, sir. I want to share my presentation. So Okay. it is comfortable. Okay. Okay, sir. Okay. It is visible to everybody. No, sir. Right now, it is not visible, sir. Okay, just a minute. Now, Ashok sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it is visible. Yes, sir. Perfect. So now the pandemic age, we learn a lot about the technology and the use of technology. We don't know about all these things earlier before this pandemic. So thank you very much to given the opportunity. We'll start our session with the intellectual property right. What intellectual property is? Intellectual property, actually, we know very well how many kind of properties are available in our surroundings. The first property, like tangible. Two types of properties are generally available. Why we are calling intellectual properties again and again, I will give a brief definition to you. Tangible properties, that mean the property which we can feel, like the land, machines, stock, raw material, money. But there's some properties which we cannot feel or we cannot touch the property, like this kind of property called non-tangible properties. Non-tangible properties, what properties they are? They are intellectual properties. The property which are created by your brain
is called intellectual property. The very simple definition: the property which are created by your brain is intellectual. Basically, are intellectual properties. So, how many intellectual properties are available around our surroundings? So, different type of intellectual properties. Like first is the industrial property, and the second one is the non-industrial property. Industrial property, which are used in the industries, like trademark, patents, design, geographical indications, trade secrets. But some non-industrial property like copyright. We will in the further session we will discuss all these things about this. So is it clear that tangible property? What tangible properties? Like your money, like your jewelries, machines, your land, and this kind of all properties called tangible. This is basically non-tangible properties. This is property, but you cannot feel it. So these kind of industrial properties are available: the trademark, patent, design, geographical indication, and trade secrets. Okay, we will go ahead with the definition of the intellectual property. The statutory right and allowed to creators on honor to intellectual property, excluded other exploiting the same commercial for given the period of time. That means any kind of law which are providing you a sum of statutory rights that you can use your own property which are created by your brain, and you can encash this property simultaneously in the commercial way. This is called intellectual property. Like we are going on the all branches of the intellectual properties are surrounding us. The first intellectual property is the trademark. And this trademark, that means the name or brand name of your firm, your any kind of brands like Nike, like any kind of brands, Raymond's. This kind of property is called trademarks. Intellectual property, it's a branch of intellectual properties. You can register your property, you can create your brand goodwill in the market, and you can encash this intellectual property. This is called trademark. This is registered under Trademark Act 1999. The another intellectual property is the copyright registration, that anybody who has created his literature, audio, video, notes, cyclostyle notes, and books, albums, that kind of property you can protect under the Copyright Act. The another intellectual property is the plant breeder rights. Suppose you have some farmer cultivated some special kind of seeds or plants, they can register under the plant breeders rights. This is the another intellectual property. The one intellectual property is the design. That means you can register the shape of your products or shape of your machines in this design. Nobody can prepare or nobody can manufacture this kind of machines other than you. So this is called the design registration under Design Act 2000. Geographical indication, the indication, the things which are originated by the particular area, the only that the society and society member can use this name, like the Calcutta, West Bengal's Rasagulla and Bikaneri Bhujia, that kind of properties, Maheshwar Sadiya. Like in Chhattisgarh, you have your 7 geographical indications are registered, like Bastar toys, the toys, the other steel works in metal work there. This is also registered under GI, geographical indication. Trade secrets, the things which are between some secrets, like the formula of Coca-Cola. This is actually known by the 2 partners of the company. Nobody know about the other formula of this company. So this is called trade secrets. Another is very important right is the patent registration. This is the registration for your innovation or invention. You can register your any kind of invention, and you can commercialize your rights up to 20 years. This is called patent rights. So these are the branches. Okay. Now we will go through one of example. This is very easy and catchy to understand this thing. This is actually the packet of Bikano Bhujia. So how many intellectual properties are involved in this one? This name and logo is registered under the Trademark Act. This is the trademark property. The artistic work of this label is registered under Copyright Act. So this is copyright property. The formulation is, if special formulation to manufacturing the bhujia, this is called patent registration under Patent Act.
So geographical indication, the Bikaneri word itself registered as a geographical indication. Only the area of Bikaner's, the society can use this name, and if anybody is using, they can claim and they can ask for the compensation. So this is actually the perfect example of the all intellectual properties. We will go with the another intellectual property example. ये जो नाम है, this is registered under the Trademark Act. This logo, like the Nike's logo, registered under Trademark Act. This is symbol of McDonald's, you know very well. And this is slogan is registered under Trademark Act. Shape of the bottle can registered under Design Act. And shape that kind of shape of Coca-Cola, nobody can copy this kind of shape. So this is registered under Design Act 2000. And specific color, if any inventive color is there, invented color is there, they can register under the Trademark Act itself. The trademark, you can get the color registration also. So this is basically the intellectual type of intellectual property. We will go with the general awareness. The first is the trademark registration. Like you can register your any name, like the Sony, Intellect Inside, Microsoft, Canon, and Coca-Cola, the Mercedes-Benz, this logo. Now you can register under Trademark Act. This is registered in Trademark Act 1999 in India. This is registered for lifetime, but subsequently renew every 10 years. So you can, what you can register in trademark? Any word, any symbol, any sound, any color, or any signature. Like you can just watch the example, this Shehnaz Hussain signatures are they are using to sell the product, and Javed Habib is also using signature to sell the product. So these kind of things can register under the Trademark Act. So like the Crocin, this word is registered under Trademark Act. When you get the trademark registration, the registration will give like this. So this is the age of this is registered for lifetime, but subsequent renewal every 10 years. The another is the copyright registration. Copyright registration, this is exclusive right of the author or owner who created and who invented this kind of design. Like this design is registered under the artistic work as a Copyright Act. Literature, कोई किताब आपने लिखी, उसको आप registered करा सकते हैं. That the life of the copyright is 60 years plus age of author. मतलब आप उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं 60 years, एंड आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसको आप सब्सिक्वेंटली हैंड ओवर भी कर सकते हैं. द ऑडियो, वीडियो, फिल्म कैन ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट. द आर्टिस्टिक वर्क, कोई लेवल का कोई आर्टिस्टिक वर्क है, यू कैन रजिस्टर्ड डेफिनेटली. This is very important for you. Software can registered under Copyright Act. That cannot registered under Patent Act, especially if software is supporting to some hardware. Then only you can claim for software and hardware as a hybrid system. Otherwise, the software is registered under Copyright Act. The object code and source code can only protect under the Copyright Act. So any kind of album, like photograph album, like picture, if you आपने कोई पिक्चर निकाली है, कोई आपकी सेल्फी निकाली है, दिस इज ऑल्सो ए बर्थ बॉर्न राइट पिक्चर रजिस्ट्रेशन. नो वन रजिस्ट्रेशन under any act is mandatory or statutory because these are your birth born right. Copyright Act के अंदर स्पेशली ऐसा है कि आपने जिस दिन अपनी पिक्चर क्रिएट की है या आपका जो वर्क क्रिएट किया है, उस दिन से आप इसके ऑथर ऑनर माने जाएंगे. और इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन यदि आप लेते हैं तो वेल एंड गुड, इट इज द प्राइमा फेसी एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. अदरवाइज यू आर इटसेल्फ द ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉपीराइट. तो ये दूसरी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. इसके अंदर कॉपीराइट एक्ट के अंदर हम लोग अपने राइट्स को रजिस्टर कर सकते हैं. एनी ऑडियो, वीडियो, लिटरेचर, आर्टिस्टिक वर्क, सॉफ्टवेयर, एल्बम्स, पिक्चर, पोर्ट्रेट्स. ये जैसे लियोनार्डो डा विंसी का मोनालिसा का पोर्ट्रेट है, वो कॉपीराइट में रजिस्टर्ड है. तो ये कॉपीराइट एक्ट हुआ. डिजाइन एक्ट, व्हाट इज डिजाइन एक्ट? द एनी काइंड ऑफ एस्थेटिक शेप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पर्टिकुलर आर्टिकल. जैसे आपने देखा होगा बिस्लरी की बोतल होती है या किनले की बोतल होती है, दोनों सब अलग अलग रहते हैं शेप में. ये 15 साल के लिए मैक्सिमम रजिस्टर्ड होती है. इनिशियली इट विल ग्रांट फॉर ओनली 10 years. सब्सिक्वेंटली यू कैन रिन्यू फॉर फर्दर 5 years. एंड दिस इज द कंपनी राइट. और इसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ले सकते हैं और कंपनी भी ले सकती है. देखिए टैबलेट का शेप रजिस्टर्ड है जैसे इसके अंदर. तो ये डिजाइन एक्ट हो गया हमारा, डिजाइन एक्ट 2000 में.
The another very important property is the patent registration. Patent registration, you can protect your invention in two ways. One is the product patent and the another is the process patent. यदि आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया है जो इन्वेंटेड है और नॉवेल है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स कहाँ पे हैं, और उसको अब यदि आप करते हैं तो यू कैन क्लेम फॉर योर राइट्स फॉर द प्रोडक्ट पैटेंट रजिस्ट्रेशन. अदरवाइज इफ एनी स्पेशल प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग समथिंग and which are useful for the particular market or cost wise or any performance wise, so you can register it as a special process under patent act also. This is called process patent. तो ये 20 साल के लिए राइट ग्रांट होता है. हर 20 साल के बाद में कोई भी पेटेंट पब्लिकली ओपन हो जाता है, उसको आप कहीं से प्रोटेक्शन नहीं कर सकते. इसको एक्सक्लूसिव राइट ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 20 साल का ही रखा गया है. तो दिस इज अनदर पेटेंट रजिस्ट्रेशन. व्हाट इज ट्रेडमार्क? हम लोग जो पहली चीज के लिए बात कर रहे थे, यू कैन रजिस्टर योर मार्क लाइक दिस वर्ड मार्क. Any signature you can register, any label you can register, numerals जैसे 21 नंबर बीड़ी 555, इस तरह से न्यूमरल्स को भी आप रजिस्टर कर सकते हैं. इन फैक्ट इन द ट्रेडमार्क एक्ट रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व द साउंड मार्क रजिस्ट्रेशन ऑल्सो. आप मोबाइल खोलते हैं तो एक स्टार्टिंग टोन आती है, जब ऑफ करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग टोन आती है. तो नोकिया की अपनी एक टोन है, एप्पल की एक अपनी टोन है. ये टोन भी ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर क्योंकि एक इसलिए रजिस्टर्ड है. तो ये इसके हो गए सारे जो टाइप है. ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अलग अलग टाइप से होते हैं. तो फर्स्ट इज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, दिस इज और सर्विस मार्क रजिस्ट्रेशन. ट्रेडमार्क के अंदर यदि कोई गुड्स आप बेच रहे हैं, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च किया तो उसको आप रजिस्टर करा सकते हैं. कोई कोचिंग क्लास या इंस्टीट्यूट या कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस मार्क में उसको रजिस्टर कर सकते हैं. कलेक्टिव मार्क एक ऐसा मार्क है जो सेकंड टाइप है इसका, कि उसको सिर्फ पर्टिकुलर जो एक सेगमेंट है, एक जो लोग हैं एक कैंपस के, जैसे एक कंपनी है जैसे BHEL है, तो उसके लोग उस पर्टिकुलर मार्क को यूज कर सकते हैं क्योंकि वो मेंबर्स हैं उसके. सर्टिफिकेशन मार्क जैसे ISI BIS या आपके इंस्टीट्यूट को नेक्स से अप्रूव मिला या AICTE से अप्रूवल हुआ है आपका, तो वो जो होता है सर्टिफिकेशन मार्क कहलाता है. कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दो तरह के मार्क रहते हैं. एक कन्वेंशनल मार्क जो जिसमें कि नाम रजिस्टर्ड होता है या कोई लोगो रजिस्टर्ड रहता है. नॉन कन्वेंशनल मार्क ये जो इनिशियली अभी स्टार्ट हुए, इसमें कोई स्मेल है स्पेशल, आपकी कोई खुशबू, आपने सेंट बनाया है, परफ्यूम बनाया है, इसको भी आप एज ए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो एक आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है. जैसे कि कोई बबल गम है, वो स्पेशल जो च्युइंग गम्स आती हैं, च्युइंग गम्स के अंदर स्पेशल फ्रेगनेंस है, उस फ्रेगनेंस को रजिस्टर्ड करा जा सकता है उसके अंदर. या फिर साउंड को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जैसे कि MGM का जो आता है एक लोगो आता है, उसके अंदर लॉयन जो है, शेर ऐसे गुर्राता है, तो वो उसके अंदर रजिस्टर्ड है. 3D शेप को आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं या फिर मूविंग मार्क्स को रजिस्टर्ड कर सकते हैं. तो ये टाइप ऑफ ट्रेडमार्क्स हो गए. इसके अंदर जो नाम के अलावा भी और क्या क्या आप नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स में रजिस्टर्ड कर सकते हैं. Like if your trademark is unregistered and under process, you can use the TM. But if you are providing the trademark for services like Uber, Ola, then you can use the SM mark. The registered mark can use after getting the final registration only. Okay, so this is the another example of the product registration. This is the trademark registration, and this is the services like Billai Institute of Technology. This is services because you are providing the services here, educational services. That's why this is called service mark. It's not called trademark. This is trademark because this is using for the pumps, water pumps. So this is actually the difference. Like duplicate trademark, how can you identify the trademark in which manner? Three type of actually differentiation is there. The one is the visually. ये एक जैसा दिखने में नहीं होना चाहिए. जैसे कि ये मैकडोनल्ड्स है, ये मंची बर्गर है, लेकिन ये दिखने में एक जैसा है. ऐसे ही पैराशूट नारियल का तेल है, ये पैरागॉन है, लेकिन दिखने में एक जैसा है, इसलिए ये डुप्लीकेसी मानी जाएगी इसके अंदर. दिस इज कॉल्ड द विजुअल कॉपी, विजुअल डुप्लीकेसी और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क्स. अनदर थिंग इज द फोनेटिकली, लिखने में एक जैसा नहीं होना चाहिए. देखिए न्यूक को, नाइकी को इन्होंने न्यूक लिख दिया है, तो ये एक ऑब्जेक्शनेबल चीज है, इसके अंदर ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकता. द अनदर इज हियर
ये देखिए कि डुप्लीकेट ट्रेडमार्क प्रोनाउंस एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे क्वालिटी है तो किसी ने KWLITY कर दिया, जिंदल है तो ZINDL कर दिया, तो ये एक ही माना जाएगा। दिस इज अगेन द कॉपी ऑफ एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द ट्रेडमार्क। कूल है तो कूल कर दिया, सिर्फ स्पेलिंग चेंज करने से नाम रजिस्टर्ड होना नहीं माना जाएगा। व्हेन यू गेट योर रजिस्ट्रेशन इन द ट्रेडमार्क एक्ट, you have rights, civil rights, criminal right and administrative rights. In civil rights you can claim फॉर द कंपनसेशन, जो भी आपको नुकसान हुआ उस भरपाई आप कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं, और ये सिविल राइट्स रहते हैं। इसके अंदर क्रिमिनल कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, उसको अरेस्ट करवा सकते हैं नकली जो ब्रांड बना रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव में ऑन द स्पॉट जाके उसके जो नकली माल बिक रहा है उसको जाके जब्ती करा सकते हैं, या फिर उसको सीजर करके उसको वहां पे इमीडिएट बंद कर सकते हैं, उसको पनिश कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द लीगल रेमेडीज अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट। ये लाइफ टाइम के लिए रजिस्टर्ड रहता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कर सकते हैं, और आप एज ए कंपनी भी कर सकते हैं, एज ए होल भी कर सकते हैं, और ये लाइफ टाइम के लिए होता है, हर 10 साल में इसका रिन्यूअल होता है। तो जुरिस्डिक्शन, ये ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट हमारा जो है बॉम्बे में, इसके टोटल 5 ऑफिसेज हैं इंडिया में। MP, छत्तीसगढ़, गोवा और महाराष्ट्र के लिए मुंबई है, ऐसे ईस्टर्न जोन के लिए कलकत्ता है, नॉर्दर्न जोन के लिए दिल्ली है, चेन्नई सदर्न जोन के लिए, और अहमदाबाद राजस्थान और गुजरात के लिए। इस ढंग से टोटल इसके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आप किसी भी जुरिस्डिक्शन में डायरेक्ट ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर है कि पहले हम लोग ट्रेडमार्क सर्च करते हैं कि इस तरह का कोई नाम ऑल ओवर इंडिया में तो रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं, डिपार्टमेंट एग्जामिन करता है, ऑब्जेक्शंस लेता है, फिर उसके अंदर हियरिंग लगती है और फिर उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। ये 10 साल के लिए इनिशियली रजिस्टर्ड होता है, सब्सिक्वेंटली इसको रिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, ये वेबसाइट है जिसपे सभी तरह की IP को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, चाहे ट्रेडमार्क हो, चाहे आपका एस्थेटिक डिजाइन हो, या फिर आपका पेटेंट रजिस्ट्रेशन। आप खुद जाकर भी यहाँ पे कंप्रेसिव ई फाइलिंग के अंदर जो सेक्शन दिया हुआ है, ये आप वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.ipindia.nic.in। इसके ऊपर आप कंप्रेसिव ई फाइलिंग में जाएंगे, इसमें जाके अपने जो भी आपका इन्वेंशन है या फिर आपका ट्रेडमार्क है, आप उसको जाके फिलअप करेंगे, गवर्नमेंट फी को पे करेंगे, और इसके बाद में इस ढंग से आपको फाइनल प्रोसेस होने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाएगा। दिस इज एक्चुअली द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ये नेशन वाइज भी होता है, इंटरनेशनली भी होता है। यदि नेशन वाइज आपको फाइल करना है तो 1 to 45 क्लासेस है इसके अंदर, क्लासिफाइड की हुई है। जितने भी तरह के दुनिया में गुड्स हैं वो सभी गुड्स को क्लासिफाइड किया हुआ है, और उसको आप पर्टिकुलर क्लास को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। मैड्रिड एप्लीकेशन, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ मैड्रिड। वाइपो जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, एक जो इंटरनेशनल बॉडी है UN की, उसका इंडिया भी एक मेंबर है। तो उसके अंदर आप एक ही एप्लीकेशन के थ्रू मेंबर कंट्रीज जितने हैं वहां पे एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। ये भी ऑनलाइन है, इसी वेबसाइट पे दे रखी है इसकी लिंक, तो आप इंटरनेशनल कंप्रेसिव ई फाइलिंग जाके कर सकते हैं। दिस इज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अगेन वी आर कमिंग फॉर द क्विज, देन हाउ मेनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर इन्वॉल्व इन दिस लेबल। This is actually the Lipton tea label. The name can registered under Trademark Act. This logo can registered under the Trademark Act. This artwork of the particular packaging is registered under the Copyright Act. This Darjeeling word is registered under Geographical Indication Act. ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। और इसी के अंदर जैसे कि जो स्कॉटिश विस्की की बॉटल है, इसके अंदर ये शेप जो है ये डिजाइन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ये नाम जो है ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर्ड है। ये जो लेबल है इसके अंदर लेबल का आर्टिस्टिक देखिए कितना सुंदर लेबल बनाया है, तो ये लेबल कॉपीराइट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इस ढंग से इतनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। तो ये हमारा जो पहला इसका चैप्टर है आज का IPR का, ये मैं यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन आंसर हो तो प्लीज आप पूछिए ट्रेडमार्क से रिलेटेड। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है पेटेंट रजिस्ट्रेशन। आपकी कोई इसकी कोई क्वेरी हो तो आप Participants, any questions you may ask to the experts, sir? Because you are in the field of technical education, so I hope you have to ask some question about the trademark registration. Now we are going on the patent registration also. This is very interesting for the students like you in the engineering section.
सो हम लोग आगे बढ़े सर पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, अशोक सर। Okay, sir. Okay. I think there is no question from the Okay, participant. perfect. Okay. So, because the trademark registration is especially favorable for the industries like the trading firms who are basically in the trading side, like they have their own brand identity and the brand goodwill, so they will encash the brand goodwill all over India. एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जैसे केश किंग हेयर ऑयल आपने कभी देखा होगा, तो केश किंग हेयर ऑयल वाज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ डॉक्टर जुनेजा अर्लियर, and they sold out this intellectual property, this brand name, to the Imami in the value of 1653, 1653 करोड़ रुपए में एक नाम को बेचा। सो दिस इज अगेन द वैल्यू ऑफ द आईपीआर एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो अभी आप इसमें इतना नहीं जानेंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे आपकी ब्रांड गुडविल बनती है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। सो हम लोग अभी इसके अंदर जो हमारे सेक्शन में आते हैं पेटेंट रजिस्ट्रेशन। पेटेंट रजिस्ट्रेशन ऑब्वियसली बिकॉज यू आर इन द इंजीनियरिंग फील्ड एंड दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर यू। What patent registration is? Patent, what is patent? Patent is some kind of invention invented by your brain. हम लोग पेटेंट की डेफिनेशन सिंपल से एक बात करेंगे, दिस इज द एक्सक्लूसिव राइट फॉर द इन्वेंशन which is a product or process that provide in general a new way of doing something or offer a new technical solution to a problem. मतलब ये कि आपने कुछ ऐसा नया बनाया हो जो टेक्निकल सॉल्यूशन दिया हो, जो पहले से प्रोडक्ट हो, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो या फिर प्रोसेस हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो, कोई ऑर्डिनरी चीज भी है तो उसको भी आप एज ए इन्वेंशन पेटेंट एक्ट के अंदर डील कर सकते हैं, पेटेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। तो जो पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर रजिस्टर्ड होता है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ये सिर्फ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं, किसी को किराए पे दे सकते हैं, तो ये पेटेंट रजिस्ट्रेशन हुआ। तो पेटेंट का व्हाट पेटेंट रिक्वायरमेंट क्या है बेसिक पेटेंट के लिए? आपने कोई आविष्कार या इन्वेंशन किया है तो वो नॉवेल होना चाहिए, पहला तो है कि नया होना चाहिए, अनपब्लिश्ड होना चाहिए, अनयूज्ड होना चाहिए, अनडिस्क्लोज होना चाहिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप और यूजफुल टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इन तीन चीजों के ऊपर आपका पूरा पेटेंट टिकेगा। तो पेटेंट की ड्राफ्टिंग के अंदर यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज अनपब्लिश्ड, आपने पहले कहीं पे इसको पब्लिश नहीं किया है, अनयूज्ड, कहीं भी दुनिया में यूज नहीं हुआ है, क्योंकि पेटेंट की पहली कंडीशन ये है, इफ इट इज डिस्क्लोज टू द समबडी in commercial manner, so the patentability is automatically zero. You cannot, it is null and void, you cannot apply for patent registration. तो जब आपने कोई इन्वेंशन किया है तो आप उसको बजाय इसको पॉपुलर करने के या फिर आप इसको कमर्शलाइज करने के, आप पहले इसके पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करिए। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फाइल करना है। तो तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है। नॉवेल्टी, नॉवेल्टी के अंदर जो अनपब्लिश, अनयूज्ड, अनडिस्क्लोज, ये तीन चीजें क्लियर हो गई आपको कि आपका जो भी इन्वेंशन है वो ये तीन चीजों में। इन्वेंटिव स्टेप, इसमें कुछ नयापन होना चाहिए, मतलब नॉवेल्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उठा के उसको कॉपी पेस्ट कर दिया और उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, वो अलाउ नहीं है। जैसे कि ऑलरेडी मोबाइल चल रहा है, उसके अंदर आपने कैमरा डाल दिया, दिस इज नॉट इन्वेंशन फॉर द मोबाइल, बिकॉज दिस इज नॉट इन्वेंटिव स्टेप अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। यूजफुल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यूजफुल क्यों होना चाहिए? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का अर्थ ये नहीं कि इंडस्ट्री में यूज होना चाहिए, पर उसका मीनिंग ये है कि ह्यूमन बींग्स के काम का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपने पॉइजन बनाया है ह्यूमन बींग्स को मारने के लिए, तो वो रजिस्ट्रेबल नहीं है। टाइप ऑफ पेटेंट कितने तरह के होते हैं? प्रोडक्ट को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं और प्रोसेस पेटेंट कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज एक्चुअली द पेटेंट रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या क्या नॉन पेटेंटेबिलिटी क्या नहीं हो सकता, जैसे फेबुलस, मतलब जो आम जिंदगी में अवेलेबल है, जो चीजें जो हम लोग
नॉर्मली यूज कर रहे हैं उसको हम लोग पेटेंट नहीं करा सकते। नेचुरल लॉ के अगेंस्ट में कोई चीज है उसको हम लोग रजिस्टर्ड नहीं करा सकते पेटेंट एक्ट में। मोरलिटी के अगेंस्ट है या इंजurious टू द पब्लिक हेल्थ है, यदि कोई, मैंने जैसा एग्जांपल बताया, कोई पॉइजन बनाया है ह्यूमन बीइंग को मारने के लिए, तो वो पॉइजनस है, तो वो मोरलिटी के अगेंस्ट है, वो रजिस्टर्ड नहीं करा सकते। जो डिस्कवरी ऑलरेडी साइंटिफिक डिस्कवरी जैसे मार्केट में है और उसी को री इन्वेंट आप कर रहे हैं या फिर री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो पेटेंटेबल नहीं है एज पर लॉ, क्योंकि नया प्रोडक्ट होना चाहिए। एनी प्रॉपर्टी यूज्ड इन द नॉन सब्सटेंस, यदि कोई दो चीजें हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, आपने उसको मिला के कोई तीसरी चीज नई बनाई है, वो पेटेंटेबल नहीं होगी। जैसे पैरासिटामोल है और आइब्रूफेन है, आपने मिला के उसको एक आइबुपेरा का नया सा कंपाउंड बना लिया, तो वो पेटेंटेबल नहीं है इसके अंदर। ऐसे ही सब्सटेंट ऑफ एडमिक्सचर किसी चीज का जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आप यूज कर रहे हैं सब्सटेंस को। जैसे आप एक टेबलेट है जैसे कि क्रोसिन है, उसमें पैरासिटामोल है, वो एंटी फीवर में यूज हो रहा है, आपने उसको एंटी एनाल्जेसिक कर दिया या फिर एंटी फ्लेमेटरी कर दिया, तो उसको वो आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो पैरासिटामोल ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टेंस में है। तो ये चीजें पेटेंट नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ पेटेंट नहीं हो सकता है। कोई मैथमेटिकल एल्गोरिथम आपने बनाया है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉपीराइट एक्ट में रजिस्टर्ड होता है। कोई लिटरेचर है, ऑडियो वीडियो, क्योंकि कॉपीराइट में होता है। परफॉर्मेंस, कोई मेंटल एक्ट, कोई ऐसा खेल बनाया है आपने, कोई प्ले बनाया है, ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। एनी प्रेजेंटेशन, कोई इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये कॉपीराइट में रजिस्टर्ड होती है। कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज कैसे है कि जो आपके जैसे बस्तर या दुर्ग में खिलौने बनाते हैं वो ऑलरेडी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल नॉलेज सालों से वहां पे चल रहा है। जो मेटल आर्ट है बस्तर और दुर्ग का, वो ऑलरेडी नॉलेज में है, तो वो वहां पे जीआई है वहां का, न कि वो पेटेंट हो सकता है। इन्वेंशन कोई भी एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है वो पेटेंट नहीं हो सकता, इसके लिए डीआरडीओ की परमिशन लेनी पड़ती है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्वेंशन करना होता है तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री से तो हमको परमिशन लेना पड़ती है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन पेटेंटेबिलिटी ऑफ द एनी काइंड ऑफ इन्वेंशन। आइडिया को रजिस्टर्ड आप नहीं कर सकते, एनी काइंड ऑफ बिजनेस आइडिया, लाइक मैंने एमवे का एग्जांपल दिया, तो एमवे इसके अंदर क्योंकि ये एक बिजनेस आइडिया था, तो ये पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। प्रिपरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन, प्रिपरेशन टू प्रोटेक्ट योर इन्वेंशन, जैसे आपने कोई इन्वेंशन किया है पहले, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो नॉन ऑब्वियस है। मतलब एक साधारण भाषा में बोले तो आपने कोई ऐसी मशीन बनाई है, वो मशीन बिल्कुल साधारण नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉवेल्टी फीचर होना चाहिए। फाइब्रिलस नहीं होना चाहिए, मतलब आम आम नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें सबसे पहले आपको प्रायर आर्ट सर्च करना पड़ेगा। प्रायर आर्ट के लिए आपको मैक्सिमम कीवर्ड आप बनाइए, और कीवर्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है ipindia.nic.in, इस पे जाके क्लिक करके पेटेंट सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके बाद में आपको यूएस में मेन जो आपको, क्योंकि पेटेंट की फर्स्ट कंडीशन ये है कि दुनिया में कहीं पे भी ये एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए, तो मेजर कंट्रीज को आपको सर्च करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले फ्री इंजन, जो सबसे बढ़िया इंजन है, गूगल पेटेंट। गूगल का एक खुद का एक गूगल पेटेंट सर्च इंजन है, उसके ऊपर आप जब गूगल में डालेंगे तो वो इंजन खुल जाएगा। उसमें कोई भी आपका इन्वेंशन है तो वो कीवर्ड आप डालिए, उससे रिलेटेड ऑल ओवर वर्ल्ड में, चाहे वो यूके, यूएस, इंडिया, किसी भी रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो वो पेटेंट, उसके अंदर शो कर देगा। तो आपको uspto.gov.in, यूएसए की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको पेटेंट सर्च कर सकते हैं। गूगल पेटेंट पे जो मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वाइड पेटेंट स्पेस नेट, जैसे जेके यूके का, यूनाइटेड किंगडम या यूरोपियन पेटेंट्स को सर्च करने के लिए हम लोग स्पेस नेट करके एक इनकी वेबसाइट है, वहां पे कर सकते हैं। इंडियन पेटेंट को सर्च करने के लिए www.ipindia.nic.in पे पेटेंट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पेटेंट सर्च ऑप्शन है, वहां जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये तो पहला स्टेप आपका हो गया कि पेटेंटेबिलिटी है कि नहीं। दूसरा स्टेप ये हो गया प्रायर आर्ट सर्च, कि पहले से कहीं इस तरह का इन्वेंशन जो आपने बनाया है वो कहीं और अवेलेबल है कि नहीं है, वो पहली चीज। दूसरी चीज हो गई, इससे मिलता जुलता कुछ भी इन्वेंशन मिलता है तो आपको अपनी एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो मिलता जुलता एक इन्वेंशन हमको मिला है प्रायर आर्ट में, लेकिन ये हमारे इन्वेंशन से डिफरेंट कैसे है, आपको उसको कंपेरेटिव उसके अंदर डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, प्रीवियस रिजल्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तीसरा, फिर ड्राफ्टिंग पे आप आएंगे।
तो ड्राफ्टिंग आप दो तरह से कर सकते हैं। आपका जैसे आपने पेटेंट एप्लीकेशन खुद की ड्राफ्ट करना हो तो उसमें प्रोविजनल मतलब एक तरह से एक कच्चा पेटेंट होता है कि आपने कोई चीज, आपको एक आइडिया आया और आपको लगा कि ये कहीं डिस्क्लोज नहीं हो जाए, तो मैं इसमें वर्क करूंगा, मुझे 1 साल लग जाएगा इसको अभी वर्क करते करते, तो मैं इसको पहले प्रोटेक्ट कर लूँ। तो इसमें प्रोविजनल एप्लीकेशन आप अलॉन्ग विद टाइटल और एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ में एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। कैसे फाइल करनी है मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बाद में। फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 365 दिन के अंदर विद इन 1 ईयर यू हैव टू फाइल द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। जब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अपना पूरा दे देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को वहां पे ट्रीट करना शुरू किया जाता है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड पेटेंट, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के यहाँ पे। तो इसके अंदर जब एप्लीकेशन आपकी ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज रखना है। एक तो प्रायर आर्ट रेफरेंस रखना है कि पहले से किस किस तरह के प्रायर आर्ट्स अवेलेबल हैं आपके इन्वेंशन से मिलते जुलते। फिर डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको। तो डिस्क्रिप्शन आपने जैसे कोई मशीन बनाई है तो मशीन के पार्ट को लेबल करते हुए उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है और ड्राइंग उसके साथ में देना है। वो ड्राइंग को में लेबलिंग करना है कि कहाँ पे क्या क्या चीजें, और क्लेम्स लिखना है। आखिरी आखिरी में क्लेम और एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। क्लेम के अंदर क्या क्या आएंगे, जो आपका मेन चीज को आप क्लेम करना चाह रहे हैं। सपोज आपने एक मशीन बनाई है, एक रोबोट बनाया है, रोबोट मल्टीपर्पज काम करता है, तो आपके क्या क्या क्लेम है। तो फर्स्ट क्लेम इज डूइंग दिस जॉब अलॉन्ग विद सपोर्टिंग क्लेम, उसके नीचे सपोर्टिंग क्लेम आएंगे। एक फीस के साथ में 10 क्लेम तक अलाउ किया जाता है। 10 क्लेम के बाद में एक्स्ट्रा फी आपको पे करनी रहती है। तो इस ढंग से आपकी एप्लीकेशन को आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब ये क्लेम्स होने के बाद में एप्लीकेशन में आखिरी आखिरी में एब्स्ट्रैक्ट आता है। वो एब्स्ट्रैक्ट एक तरह की समरी है आपके पूरे पेटेंट की या डिस्क्रिप्शन की, वो समरी आखिरी में आएगी और वो समरी ऑनलाइन पब्लिश होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट में। यदि किसी को ऑब्जेक्शन फाइल करना हो तो उसमें कर सकते हैं। तो ये पेटेंट रजिस्ट्रेशन को ड्राफ्टिंग के प्राइमरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले पेटेंटेबिलिटी चेक, प्रायर आर्ट सर्च, कंपैरिजन विद द प्रीवियस रिजल्ट्स एंड द ड्राफ्टिंग ऑफ द पेटेंट। ये जिस्ट है जो कि पेटेंट का। यदि आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी हो गई, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पेटेंट रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। ये बेसिकली थिंग्स है। अब हम प्रोसीजर की जहां तक बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रायर आर्ट सर्च कर लिया, हमने अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे ड्राफ्ट कर ली। इसके बाद में हमको अर्ली पब्लिकेशन जल्दी करना है, या फिर इसमें ऐसा है कि अर्ली पब्लिकेशन हम लोग करते हैं तो इसकी फीस एक्स्ट्रा लगती है। आपकी एप्लीकेशन विद इन 2 to 3 मंथ्स पब्लिश हो जाती है। पब्लिश करने का जो मेन फायदा इसके अंदर ये है कि इन्वेंटर्स जो ऑनलाइन देखते रहते हैं, जो बड़ी कंपनीज, वो आपके इन्वेंशन को डायरेक्ट आपके साथ नेगोशिएट करके यहाँ से उठा सकती है। इसलिए अर्ली पब्लिकेशन लोग करते हैं। अदरवाइज आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन जो ऑर्डिनरी करेंगे, 18 महीने बाद में एप्लीकेशन इट विल ऑटोमेटिकली पब्लिश्ड इन द ट्रेडमार्क जर्नल, वहां पे पब्लिश कर दी जाएगी। ये वैसे ही पब्लिश होता है जैसे कि हम लोग कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो कोई कॉशन नोटिस, जाहिर सूचना पब्लिश होती है। यदि किसी को भी आपत्ति हो तो इसके अंदर वो 1 साल के अंदर फाइल कर सकता है। अदरवाइज हम लोग इसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन करेंगे कि भाई मेरी एप्लीकेशन मैंने फाइल की है, आप इसको प्लीज एग्जामिन करिए कंट्रोलर को। कंट्रोलर विल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड सेंड द FER, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो प्राइमरी रिफ्यूजल वो दे देगा कि भाई इस तरह का पेटेंट ऑलरेडी आपको क्यों दिया जाए। तो हम लोग उसका फिर रिप्लाई सबमिट करेंगे कि भाई हमारा पेटेंट इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारा इस ढंग से ये अलग है, जो भी है हम लोग उसको देंगे। फिर उसके बाद में वो हियरिंग लगाएगा कंट्रोलर और फिर फाइनल डिसीजन ग्रांट कर देगा। ये पेटेंट ग्रांट होने का जो पीरियड है ये करीब 2 से 3 साल का अप्रोक्सीमेट पीरियड है। ये एक लंबी प्रोसीजर है। यदि इसके अंदर आप स्टार्टअप रजिस्टर्ड करते हैं तो स्टार्टअप का 1 साल के अंदर आपको पेटेंट ग्रांट होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये पेटेंट रजिस्ट्रेशन हो गया। पेटेंट 20 साल के लिए वैलिड रहेगा। दिस इज वैलिड फॉर ओनली 20 years एंड आफ्टर 20 years इट इज पब्लिकली डोमेन, एवरीबडी कैन कॉपी इट। ओके, सो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। एक फॉर्म 1 है जो डुप्लीकेट में आपको भरना है। इसके बाद में आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है। मैं आपको अभी ऑनलाइन करके बताऊंगा इसके अंदर पेटेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपकी एब्स्ट्रैक्ट जमा करना है, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी समरी होनी चाहिए, सिनॉप्सिस। और इसके बाद ड्राइंग, यदि कोई ड्राइंग सपोर्टिव है वो देना है। यदि आपको और कुछ प्रूफ देना है इसके अंदर, आप कैसे रिसर्च की क्या दी वो दे सकते हैं।
पावर ऑफ अटॉर्नी यदि कोई एडवोकेट के थ्रू अपॉइंट कर रहे हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द सेम। एंड डिक्लेरेशन, इन्वेंटर आप ही का इन्वेंशन है, आपने चोरी नहीं किया ऐसा करके एक इन्वेंशन है, ये डिक्लेरेशन है। फीस इसकी 1,000 रुपए है और 4,000 रुपए। 1,000 रुपए in the case if you are applying in your own individual capacity, the government fees for patent filing is 1,000 only. And if you are some entity like you are private limited company or college or any university, you have to pay 4,000 for each patent as a government fees. ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। इसके अंदर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दो तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। दैट मीन द प्रोविजनल एप्लीकेशन, दिस इज ओनली द ब्रीफ ऑफ योर पेटेंट। आप लोग एक चाह रहे हैं कि आप कोई इन्वेंशन स्टार्ट करने के पहले एक वहां पे हम लोग फाइल करें और वो प्रोटेक्ट हो जाए हमारा, तो उसके लिए आप अभी सिर्फ उसकी समरी डाल सकते हैं। उसको बाद में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में 365 दिन में 1 साल के अंदर आप दे सकते हैं। तो इसमें इस ढंग से मैंने आपको बताया कि क्या क्या आना चाहिए। टाइटल आना चाहिए सबसे पहले, आपने क्या इन्वेंशन किया है, फील्ड किस फील्ड से रिलेटेड है, इज इट फ्रॉम मैकेनिकल साइड और इज इट फ्रॉम ऑटोमोबाइल साइड और एनी काइंड ऑफ साइड, एंड यूज क्या क्या यूज है डिस्क्रिप्शन में आएगा। प्रायर आर्ट, पहले से इस तरह के पेटेंट क्या क्या है मार्केट में और आपका कैसे अलग है। ड्रॉबैक क्या क्या है प्रायर आर्ट सर्च के में, पहले क्या जो जिनको आपने अप्रूव कंपैरिजन करके बताना है कि आपका कैसे अच्छा है, समरी बताना है, डिटेल्स बताना है और क्लेम को सबमिट कर देना है। तो ये पेटेंट्स के क्लेम कैसे होना चाहिए, जो क्लेम्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग रहता है पेटेंट रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि ये सर्टिफिकेट के अंदर लगकर सिर्फ क्लेम्स ही आते हैं और एब्स्ट्रैक्ट आता है। तो क्लेम्स के अंदर आपको ये बताना है, आपका जो फर्स्ट क्लेम है वो प्राइमरी क्लेम होता है। उसके अंदर सिंगल आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस पेटेंट में आपका क्या क्या है इन्वॉल्व है, और मेन जिस्ट जो है आपके उसका फर्स्ट क्लेम के अंदर आना चाहिए। इसको प्रिंसिपल क्लेम बोलते हैं। और बाकी नीचे के जो क्लेम्स हैं वो सब सपोर्टिव क्लेम्स रहते हैं। जैसे आपने एक मशीन रोबोट मेजरली ये काम करता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हेल्प करता है मशीन्स को। दूसरा उसका ये काम है कि वो साफ सफाई भी कर लेता है। तो पहला क्लेम जो है प्रिंसिपल क्लेम में आएगा कि द रोबोटिक डिवाइस विच कैन हेल्प टू मैन्युफैक्चरिंग द सो एंड सो गुड्स। अनदर सपोर्टिंग में आएगा consisting with the doing the cleaning work in the industry also। तो ये एक सपोर्टिव क्लेम हो गया, ठीक है, ये क्लेम्स हो गए। प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन फाइल करना है, डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करेगा, ऑब्जेक्शंस लेगा। एक्सेप्टेंस नॉर्मली नहीं होता है वहाँ पे, वो लोग एक ऑब्जेक्शन लेटर भेजेंगे, हम लोग रिप्लाई सबमिट करेंगे, फिर वो पब्लिकेशन होगा। यदि कोई ऑपोजिशन आता है तो ऑपोजिशन हियरिंग चलेगी, वो क्लियर होने के बाद में फाइनली आपको पेटेंट ग्रांट होगा। ग्रांट होने का अप्रोक्सीमेट पीरियड अभी 2 से 3 साल चल रहा है। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। इस ढंग से पेटेंट ड्राफ्ट होता है। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन आ जाता है, जैसे ये टाइटल है, एंड डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग पेन विद डिवाइस ऑफ लाइट। ये इसके अंदर ये इन्वेंटर है, इसका अपने इसने नाम बता दिया है। और इस ढंग से पेटेंट का डिस्क्रिप्शन आ गया है। द बी में पेटेंट डिस्क्रिप्शन है, सी में टाइटल आ जाता है, क्रॉस रेफरेंस यदि कोई पहले से ऑलरेडी है, यूएसपीटीओ का कोई है या इंडियन पेटेंट है, वो आपको बताना पड़ेगा कि मिलते जुलते पेटेंट हम लोगों को इस ढंग से मिले हैं। बैकग्राउंड आपको बताना पड़ेगा कि पहले ऐसा होता था कि इस तरह का पेंसिल और बॉल पेन आते थे, और अब हम लोगों ने ऐसा इन्वेंशन किया है कि ये लाइट भी देता है, फैन भी लगाता है, जो भी है इसके अंदर इन्वेंशन। आपको क्लेम्स कैसे रहेंगे, क्लेम्स मैंने आपको बता ही दिया। इंडिपेंडेंट क्लेम जो प्रिंसिपल क्लेम रहता है, फर्स्ट क्लेम रहता है, और बाकी के सारे सपोर्टिव क्लेम्स रहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब मैंने आपको बताया कि समरी, दिस इज एक्चुअली सिनॉप्सिस ऑफ योर होल इन्वेंशन। इसमें क्या क्या समरी है वो सारा आ जाएगा। तो इस ढंग से आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। आप खुद अपनी ड्राफ्टिंग करके इसे ड्राइंग बना सकते हैं। ड्राइंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन को इजीली कन्वे कर सकती है। जैसे ये एक पंप जो वाटर ट्यूबवेल पंप की है डिजाइन, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन क्या हुआ है, लेबल 1 2 3 4 5 6 क्या है, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो किया हुआ है। ये यूएसपीटीओ में हम लोगों ने फाइल किया है, तो उसका मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो इसके अंदर ये डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि ए में क्या है, बी में 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, वर्किंग कैसे करेगा। और इस ढंग से हमने क्लेम बना दिया उसके बाद में। जैसे ये प्रिंसिपल क्लेम है, हाई एफिशिएंसी मोटर सेट मोटर कंप्राइज विद स्टार्टर असेंबली
रोटरी असेंबली, इस ढंग से ये, और नीचे इसके सपोर्टिव क्लेम्स ले लिए हम लोगों ने। तो ये इस ढंग से क्लेम बना के आपको सबमिशन करना है। ये कुछ पुराने पैटेंट्स हैं, जो सबसे पहले ये अब्राहम ग्राहम बेल का है, जो इन्वेंशन है। इस ढंग से फ्लाइंग मशीन है राइट ब्रदर्स की। ये थॉमस अल्वा एडिसन का बल्ब है। इस ढंग से इन्वेंशन इन लोगों ने यूएस में फाइल किए और उन लोगों को ग्रांट हुए। तो ये एक्चुअली पेटेंट की इम्पोर्टेंट कंडीशन है। हाँ, पेटेंट में अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यदि आपका कोई पेटेंट चोरी करता है तो उसमें आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। आप इसके अंदर जाकर अगेन वही तीनों राइट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। यदि कोई कॉपी करता है उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं इन्फ्रिंजमेंट का, और उससे कंपनसेशन मांग सकते हैं कि जितना डैमेज हुआ है वो आपको दिलाया जाए। और जब इन्फ्रिंजमेंट होने के 3 साल के अंदर आपको ये केस फाइल करना है, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां भी आपका कॉपी हो रहा है वहां पे आप फाइल कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ही है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में फाइल करते हैं तो 1000 है, और लीगल एंटिटी में फाइल करते हैं जैसे प्राइवेट लिमिटेड, कॉलेज या स्कूल्स तो 4000 है। सब्सिक्वेंटली इसको रिन्यू करते हैं तो इसका रिन्यूअल हर साल का है। तो तीसरे साल से इसका रिन्यूअल चालू हो जाता है, जिसमें इंडिविजुअल में 500 रुपए है और इसमें 2000 रुपए लीगल एंटिटी में। ओके, तो ये हमारे जुरिस्डिक्शंस हैं। हमारे 4 पेटेंट ऑफिसेज हैं जिनके टेरिटोरियली जुरिस्डिक्शन अलग अलग दिए हुए हैं। हेड ऑफिस बॉम्बे में है इसका, जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र की टेरिटरी आती है। और चेन्नई सदर्न रीजन में सदर्न रीजन सारा आता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। दिल्ली के अंदर नॉर्दर्न रीजन आता है, कलकत्ता के अंदर रेस्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया अलोंग विथ ईस्टर्न रीजन सारा आ जाता है। तो ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आप, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपकी एप्लीकेशन बॉम्बे में ट्रीट होगी, वहां पे हियरिंग लगेगी। तो ये पेटेंट फाइलिंग अलग अलग तरीके से होती है। ओनली नेशनल फाइलिंग जैसे इंडिया में आप फाइल कर रहे हैं, कन्वेंशनल फाइलिंग जैसे यूएस और यूके में भी फाइल कर रहे हैं, नेशनल कन्वेंशन जैसे कि आप इंडिया में भी कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं। और पीसीटी, पीसीटी ऑफ एक पेटेंट ट्रीटी बनी हुई है वाइपो की। इसके अंदर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें आप एक ही एप्लीकेशन के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं सारी कंट्रीज में। बट इसके लिए मैंडेटरी है कि इंडिया में आपकी एप्लीकेशन आपकी प्रिंसिपल कंट्री में फाइल्ड होनी चाहिए एटलीस्ट। ये इसकी फी है अलग अलग सब लोगों की। सो हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बिलियन केस को, जो बहुत पॉपुलर केस है। इसके अंदर सैमसंग ने इंटेंशनली कुछ पैटेंट्स को कॉपी किया था अपने गैलेक्सी मोबाइल के अंदर। इसके अंदर जो डिजाइन को इन्होंने कॉपी किया था, सबसे पहले डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट था। उसके फीचर्स जो थे, कॉपीराइट एक्ट के अंदर जो फीचर्स थे वो भी उसने उन्होंने कॉपी किए थे। और पेटेंट के अंदर जो इसकी वर्किंग थी, लाइक इसके अंदर कई ऐसी जो एप्लीकेशंस थी जो पेटेंटेड थी वो उन्होंने कॉपी की थी। तो इसके अगेंस्ट में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और इसमें कंपनसेशन $1 बिलियन का कंपनसेशन सैमसंग को देना पड़ा था। तो दिस इज द अनदर केस 1 बिलियन। ऐसे ही ये बजाज और टीवीएस का केस है। इसके अंदर एक डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन की टेक्नोलॉजी थी जो ऑलरेडी बजाज के नाम रजिस्टर्ड है। टीवीएस एक फ्लेम करके बाइक लाया था, तो फ्लेम में उसको टेक्नोलॉजी से मिलती जुलती टेक्नोलॉजी थी, तो अल्टीमेटली टीवीएस को उसको बंद करना पड़ा। तो ये हमारा आज का जो पेटेंट का एक ब्रीफ है। अभी हम लोग ये यूएसपीटीओ की वेबसाइट है, यदि आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, uspto.gov.in पे GOV पे जाके इस पे आप यूएस के पेटेंट को सर्च कर सकते हैं। ये पेटेंट सर्च इंजन इंडिया का है, ipindia.nic.in पे जाके आप पेटेंट सर्च कर सकते हैं अपने किसी भी तरह की, इंडिया में कितने तरह के पेटेंट्स हैं। इस तरह का पेटेंट सर्टिफिकेट आपको ग्रांट होता है। ये 20 साल के लिए वैलिड रहता है। हर तीसरे साल से इसका रिन्यूअल कराना मैंडेटरी होता है। सो ये तो एक जनरल अपना इंट्रोडक्शन हो गया। मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि पेटेंट की फाइलिंग आपको किस ढंग से करनी है। ये हमारी वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके ऊपर आप, जैसे आपने कोई इन्वेंशन किया है, आप में से कोई इंटरेक्ट करना चाहेगा, कोई स्टूडेंट जिसने इन्वेंशन अपना किया हो आज तक? सर, अशोक सर? हाँ, yes sir. Anyone of the participants want to just discuss? Anyone having these? Anyone participant who have discovered their own invention, they can discuss with us for the procedure and all these things. कोई किसी ने किया है अभी तक इन्वेंशन कुछ ऐसा?
ओके परफेक्ट। तो अभी आप लोग जो इन्वेंशन करेंगे, हम लोग, अब मैं आपको बताना हूँ कि कहाँ से आपको फाइलिंग करना है। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ipindia.gov.in। इस पे आप जाएंगे, इस पे कंप्रेसिव ई फाइलिंग पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आप करेंगे। यहाँ पे आपको फाइलिंग का सेक्शन आ जाएगा कि आपको क्या फाइल करना है, ट्रेडमार्क फाइल करना है कि कॉपीराइट। तो आप यहाँ पे पेटेंट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पेटेंट यहाँ पे जाके आप जैसे फाइल करेंगे तो कैप्चा आप एंटर करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट पेटेंट फाइलिंग आप अपनी जाके खुद कर सकते हैं। लाइक आपका कॉलेज में भी यदि चाहे तो उसको फाइलिंग कर सकता है उसके अंदर जाके। अशोक सर, मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मेरा सेशन खत्म करता हूँ और क्वेश्चन आर का सेशन रखते हैं इसमें। ओके ओके जैसे सर। जैसे ये फाइलिंग हमारा फाइलिंग पोर्टल है। पेटेंट आपको कैसे फाइल करना है, इसके अंदर ये इस ढंग से आपका खुल जाएगा। पेटेंट फाइलिंग का ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग पेटेंट के लिए न्यू एप्लीकेशन का कॉलम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जाके अपनी न्यू एप्लीकेशन को अपलोड कर सकते हैं। मैंने जो बताया, आप वो सारी चीजें प्रिपेयर करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। आपका जुरिस्डिक्शन सिलेक्ट करना है, किस तरह की एप्लीकेशन आप फाइल करना चाह रहे हैं। ऑर्डिनरी एप्लीकेशन है या कोई यानी स्पेसिफिक कन्वेंशनल एप्लीकेशन है, प्रोविजनल फाइल करना चाह रहे हैं या कंप्लीट फाइल करना है। इफ यू वांट टू फाइल योर प्रोविजनल एप्लीकेशन, यू हैव टू गिव ओनली द ब्रीफ अबाउट योर पेटेंट, लाइक what is your title and what invention you have and what is differentiate with the present invention. You don't want to give the claims here and abstract here. You have to give just synopsis in the प्रोविजनल पेटेंट। कच्चा पेटेंट आप फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा क्लेम्स वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है। आपने एक मशीन बनाई है, उसका ये यूटिलिटी हो रही है, ऐसा करके आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन यहाँ फाइल कर सकते हैं। आपने फाइल में क्या क्या किया है, क्लेम्स कितने, यदि आप इसको डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं। यहाँ सिग्नेचर करना है, एक फॉर्म 9 आपको साथ में सबमिट करना है। फॉर्म 9 इज स्पेशली फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटर। आपने कहीं से चोरी नहीं किया है, ऐसा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा डिक्लेरेशन, और आपने खुद इन्वेंट किया है। और यहाँ पे एग्री करके आप जब सबमिशन करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका जो इन्वेंशन है, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन किया है और ड्राइंग्स है, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसको जाके डायरेक्ट फाइलिंग कर सकते हैं। इसमें 1000 रुपीज की कॉस्ट पे आप अपना एप्लीकेशन सिर्फ फाइल कर सकते हैं। जब आप प्रोविजनल यदि कर रहे हैं, इफ यू आर फाइलिंग प्रोविजनल एप्लीकेशन, यू कैन डायरेक्टली फाइल हियर विदाउट एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑल्सो। बट इफ यू आर फाइलिंग इन द कंप्लीट specification manner, like your application is completely okay and you have to file in the complete specification. Until or unless you are not giving your complete specification to the department, they will not treat your application. वो जब तक वो उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं, जब तक आप उसको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सबमिट नहीं करेंगे। तो जब आपका इन्वेंशन आप पहले से सोच रहे हैं तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन करिए, और विद इन ईयर यू हैव टू फाइल द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अलोंग विद ऑल दिस डिटेल आई हैव गिवन यू। तो इसके अंदर जाकर आपको जस्ट फी पे करना है और आपका फिर इसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने आज आपको लाइव एग्जांपल्स कुछ बताए हैं। तो हम लोग अभी सेशन को यहीं खत्म करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, यदि आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, लाइक ipindia.nic.in. दिस इज द एक्चुअल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया। यू कैन रजिस्टर योर ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एंड डिजाइन. And the patent office, the another website they have, but this is the sufficient website in the principle. The copyright registration you can directly file on copyright.gov.in. इसके बाद में आप दूसरी जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, इस पे भी जाके कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाके आपको किसी तरह का और रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है, लाइक कोई भी इन्वेंशन नए तरह का है तो वहां कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं यदि आपने सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका एक मिनिस्ट्री है MIT GOV, तो वहां कर सकते हैं। प्लांट वेराइटी, कोई प्लांट की कोई वेराइटी आपने निकाली उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज के सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं, और थैंक यू वेरी मच टू पार्टिसिपेट इन दिस वेबिनार। एंड यदि कभी फ्यूचर में हमारा इंटरेक्शन हुआ तो फिजिकली भी हम लोग आपको ड्राफ्टिंग वगैरह के रिगार्डिंग और जो चीजें हम लोग करेंगे और उसका बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच अशोक सर, गुहा सर, एंड थैंक यू वेरी मच टू BIT
and I'm just completing my session here. And if you have any question, please ask me without any hesitation here. तो मैं ये चाहूंगा कि बच्चे यदि अभी कुछ पूछना चाहें तो प्लीज अशोक सर आप बोलें इनको बच्चों को. Yes, yes, sir. Anyone having questions, please ask the questions. Sir is with us. Kindly ask the questions. If you have any invention and you want to just patent it, kindly ask the question. Or drop the questions in the chat box. Okay. So. Okay, sir. So thank you, sir. Very short period. You have just accepted our invitation and just give a brief Thank you. information to the participants. I hope we'll just meet in the next program by which Yeah, we just sure. learn patent how to just write this draft, how to write the and what draft this or what the which is going to be just patented, or the whatever invention of these participants by these different workshop will learn the drafting activities. So sir, hopefully I'll just meet in the next program. So thank you, sir, for Thank you very much. connecting with us, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Okay. Thank you. Okay, thank you, sir. Sir, hello. Sir. Ashok sir, can you हाँ, ask sir. for this presentation from sir? Yeah. If possible, can we get this presentation from sir, Rakesh sir? Presentation. Okay, Yeah. okay. We'll get. Okay, thank you sir. Okay. It was a nice presentation.